Hello everyone, how are you all? This is Fairy Candles Books, Standard 5th, Semester 2, and you're watching my channel Learn with Children Kazi. Lesson number 2, and then, lunchtime at Termo had always been fun, but lately a new interest had been added. The headmaster still inspected the lunch boxes of all 50 pupils to see if they had something from the ocean and something from the hills, and his wife with her 2 saucepans was ready to supply the missing elements from anyone's lunch, after which they would all sing chew 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 it well, everything you eat, followed by I gratefully partake. But from now on, after I gratefully partake, someone had to give a little talk. One day, the headmaster said, I think we all ought to learn how to speak better. What do you think? After this, while we are eating our lunch, let's have somebody different each day stand in the middle of the circle and tell us about something. How about that? After this, while we are eating our lunch, let's have somebody different each day stand in the middle of the circle and tell us about something. How about that? Some children thought they weren't very good at speaking, but it would be fun to listen to others. Some thought it would be super to tell people things they knew. Toto Chan did not know what she would talk about, but was willing to give it a try. Most of the children were in favor of the idea, so they decided to start the talks the next day. Japanese children are usually taught at home not to talk at meal times. लंच टाइम का वक्त था एट टोमो, और टोमो हैड ऑलवेज बीन फन, बट लेटली अ न्यू इंटरेस्टेड हैड बीन एडेड. एक न्यू इंटरेस्ट ऐड हुआ. हेडमास्टर वॉज चेकिंग द लंच बॉक्सेस ऑफ ऑल द 50 पीपल. सबके पीपल के लंच बॉक्स चेक कर रहे थे हेडमास्टर कि मे बी दे हैड समथिंग फ्रॉम ओशन एंड समथिंग फ्रॉम हिल. फिर एंड हिज वाइफ विद हर 2 saucepans हमेशा रेडी रहती है टू सप्लाई द मिसिंग एलिमेंट्स किसी के लंच बॉक्स में से. और उसके बाद दे सिंग च्यू 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 इट वेल, अच्छे से च्यू करो, एवरीथिंग यू ईट, जो भी तुम खाते हो, और फॉलोड बाय और आई थैंकफुली ईट और ड्रिंक. मैं थैंकफुली ईट और ड्रिंक करती हूँ, लेकिन बट नाउ आई थैंकफुली ईट और ड्रिंक. समवन हैड एडेड टू गिव अ लिटिल टॉक. हेडमास्टर ने एक दिन कहा सबसे कि वाइल ईटिंग आर लंच we should do one thing. Let's have somebody different each day. Stand in the middle of the circle or say about something about that you know. ऐसा हेडमास्टर कहते हैं कि कुछ बताओ. जब हम लंच खाएंगे तो बीच में खड़े रहना सर्कल पे और कुछ बताना, तुम लोगों को जो भी कुछ मालूम है बताना. तो सम चिल्ड्रन थॉट दे वेरेंट वेरी गुड एट स्पीकिंग. सब कुछ बच्चों ने सोचा कि हमको तो स्पीकिंग बराबर नहीं आती. बट अदर्स थॉट कि चलो ये फ़न होगा टू लिसन टू अदर्स. बट दे थिंक दैट इट इज़ द फन टू लिसन टू अदर्स. एटलीस्ट हम दूसरों का सुन के फ़न मतलब खुशी मनाएंगे. देन सम थॉट कि इट इज़ सुपर, इट इज़ ग्रेट टू टेल what वी नो. हमको क्या पता है, दूसरों को बताना मज़ा आती है. टोटो चैन डिड नॉट नो व्हाट शी वुड लाइक टू टेक. उसको नहीं मालूम वो क्या बोलना चाहती थी, क्या बोल पाएगी, बट स्टिल शी ट्राइड. वो ट्राई करने वाली थी. और मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वेर इन फेवर ऑफ द आइडिया. बहुत से बच्चे फेवर में थे इस आइडिया के. एंड दे डिसाइडेड कि नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे. बट जापनीज़ पीपल आर यूजुअली टॉट कि डू नॉट ईट डू नॉट टॉक एनी थिंग एट द टाइम ऑफ मील टाइम्स. खाना खाते वक्त बिल्कुल बात ना करें, ऐसे जापानीज़ बच्चों को सिखाया गया था.
Japanese children are usually taught at home not to talk at mealtime, but the headmaster used to encourage his pupils to take plenty of time over their meals and enjoy their conversation. हेडमास्टर को बहुत एनकरेज पीपल्स को वो बच्चों को एनकरेज किए कि टेक योर टाइम, टेक प्लेंटी ऑफ टाइम वाइल ईटिंग देयर मील्स और एन्जॉय द कन्वर्जेशन. He thought it was essential for them to learn how to get up in front of the people and express their ideas clearly and freely without being embarrassed. उसने ये सोचे, हेडमास्टर ने ये सोचा कि ये नेसेसरी है बच्चों के लिए कि खड़े होकर सबके सामने अपना आइडियाज़ एक्सप्रेस करना फ्रीली, क्लियरली, विदाउट हेजिटेटिंग, विदाउट शाई, विदाउट अशेम. सो ही डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू पुट द थ्योरी इनटू प्रैक्टिस. इसीलिए उन्होंने ये बच्चों को कहा कि ऐसा करने के लिए. आफ्टर द चिल्ड्रन हैड एग्रीड टू द आइडिया, दिस इज़ वॉट ही टोल्ड देम. टोटो चैन लिसन अटेंटिवली. जब बच्चे एग्रीड हो गए या आइडिया के लिए हेडमास्टर ने जो कहा, तो दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड देम, जो उन्होंने कहा. टोटो चैन लिसन अटेंटिवली. टोटो चैन जो थी वो बहुत गौर से सुन रही थी. यू डिड नॉट वरी अबाउट ट्राइंग टू बी अ गुड स्पीकर, ही सेड, एंड यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग यू लाइक. यू कैन टॉक अबाउट थिंग्स यू वुड लाइक टू डू, एनीथिंग एट एनी रेट, लेट्स गिव इट अ ट्राई. हेडमास्टर उसे कहते हैं कि तुम घबराओ मत, तुम्हें जो कहना है अच्छे से कहो, जो भी तुम्हें आता है, जो तुम कह सकती हो कहो, डोंट हेजिटेट, और एनीथिंग एट द रेट, लेट्स गिव इट अ ट्राई. एक ट्राई तो करो, कुछ भी कहो. द चिल्ड्रन सून डिस्कवर्ड दैट अनलाइक टॉकिंग टू 2 or 3 फ्रेंड्स ड्यूरिंग lunch hour, standing up in the middle. The children soon discovered that unlike talking to 2 or 3 friends during lunch hour, standing up in the middle of the whole school needed a good deal of courage and was quite difficult. Some children were so shy at first that they just giggled. कुछ बच्चों ने फाउंड आउट किया कि बहुत जल्दी बच्चों ने जान लिया कि अनलाइक टॉकिंग टू 2 or 3 फ्रेंड्स, 2 और 3 दोस्तों के साथ बात करना ड्यूरिंग लंच आवर, और सब पूरे स्कूल के सामने खड़े होकर बोलना, इज़ अ गुड डील ऑफ करेज. बहुत हिम्मत लगाना पड़ता है सबके सामने बोलने के लिए, और बहुत डिफ़िकल्ट भी है. और कुछ बच्चे तो शर्मा रहे थे और स्टार्टिंग में तो वो लोग हंसने लगे. टोटो चैन्स टर्न had not come yet, but she decided that when it did, she would tell her favorite story, The Prince and the Princess. Everyone knew it, and whenever she wanted to tell it during breaks, the children would say, "We are tired of that one." टोटो चैन का टर्न अभी नहीं आया था, लेकिन उसने डिसाइड कर ली थी कि वो उसकी फेवरेट स्टोरी बोलेगी, प्रिंस और प्रिंसेस. और सबको पता था कि वो स्टोरी मतलब वेन एवर ब्रेक होता था वो चाहती थी कि सबको स्टोरी बोले, लेकिन हर वक्त बच्चे ये कह देते थे उसको कि नहीं, हम लोग थक गए हैं. बट ऑल द सेम शी डिसाइडेड दैट वॉज द स्टोरी शी वॉज गोइंग टू टेल. लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो ये स्टोरी ही बोलेगी, वॉट एवर इट इज़. द न्यू स्कीम वॉज बिगिनिंग टू वर्क rather well when one day the child whose turn it was to give a talk firmly refused. एक न्यू प्लान वॉज बिगनिंग, चालू होने वाला था, और वन डे द चाइल्ड, जिसका टर्न आ चुका था, उसने स्ट्रांगली रिफ्यूज़ कर दिया, नो बोला, सेड नो. आई हैव नथिंग टू से, द बॉय डिक्लेयर्ड. मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए. द हेडमास्टर वेंट ओवर टू द बॉयज़ डेस्क. हेडमास्टर बॉय के पास गए. सो यू हैव नथिंग टू से, ही सेड नथिंग. तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए. ही सेड नो. The boy wasn't trying to be clever or anything like that. He honestly could not think of anything to talk about. लड़का ऐसा नहीं था कि वो was not trying to be clever, वो मतलब जानबूझकर क्लेवर बनना नहीं चाह रहा था या फिर उसको कुछ आता नहीं था, लेकिन ऑनेस्टली उसे सच में कुछ नहीं बोल पा रहा था वो. द हेडमास्टर थ्रू बैक हिज हेड एंड लाफ्ड. हेडमास्टर ने उसको थ्रू बैक, उसका ऐसा सर पीछे किया और हंसने लगा. लेट्स ट्राई एंड फाइंड यू समथिंग टू से. फाइंड मी समथिंग. द बॉय सीम्ड स्टार्टल्ड. लेट्स ट्राई एंड फाइंड यू समथिंग टू से.
आइए कोशिश करें और आपके लिए कुछ ढूंढे। तो फाइंड मी समथिंग, मेरे लिए खोजे। द बॉय सीम स्टार्टल्ड, सरप्राइज्ड, वो सरप्राइजली सोचने लगा। द हेडमास्टर गॉट द बॉय टू स्टैंड वाइल ही सैट डाउन एट द बॉयज़ डेस्क। हेडमास्टर ने लड़के को खड़ा रखा और वो यहाँ पर बैठ गए डेस्क के पास। ट्राई एंड रिमेंबर, ही सेड, what you did this morning after you got up and before you came to school. What did you do first? वो हेडमास्टर उसे कहते हैं ट्राई करो और सोचो कि आप स्कूल से सब सुबह में जब उठे तो आपने क्या किया, उठने से पहले और स्कूल उठने के बाद और स्कूल आने से पहले आपने क्या किया फर्स्ट थिंग। वेल सेड द बॉय एंड देन जस्ट स्क्रैच्ड हिज हेड। लड़के ने अपने सर पे हाथ से ऐसा स्क्रैच किया, नाखून से स्क्रैच किया ऐसा सर पे अपने, और बोला फाइन सेड द हेडमास्टर। हेडमास्टर बोले फाइन सेड द हेडमास्टर, यू हैव सेड वेल। हेडमास्टर बोलते हाँ तुमने वेल कहा। यू डिड हैव समथिंग टू से, तुम्हारे पास है कुछ बोलने के लिए। व्हाट डिड यू डू आफ्टर वेल, तुमने क्या किया वेल बताओ। वेल आई गॉट अप, he said, scratching his head some more. उसे कहा वेल he said, फिर अपने सर पर फिर से स्क्रैच करने लगा। टोटो चैन एंड द अदर्स वेर अम्यूज्ड, टोटो चैन और दूसरे लोग स्माइल कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था इट्स गोइंग ऑन फनी, बट लिसन अटेंटिवली, लेकिन ध्यान से सुन रहे थे। द बॉय वेंट ऑन, देन लड़का फिर कुछ बोला। देन ही स्क्रैच हिज हेड अगेन, फिर से स्क्रैच किया हेड को। द हेडमास्टर सैट पेशेंटली वॉचिंग द बॉय, हेडमास्टर जो थे बहुत पेशेंटली बैठे थे बच्चे को देखते हुए। विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड हिज हैंड्स क्लैप्स्ड ऑन द डेस्क, अपने फेस पे स्माइल थी और डेस्क पे अपने हाथ बांध कर बैठे थे। देन ही सेड दैट्स स्प्लेंडिड, बहुत शानदार, दैट विल डू, हाँ चलेगा। यू गॉट अप दिस मॉर्निंग, तुम सुबह उठे थे। यू हैव मेड एवरी वन अंडरस्टैंड दैट, ये तुमने सबको समझा दिया कि तुम सुबह उठे थे। यू डोंट हैव टू बी अम्यूजिंग और मेक पीपल लाफ टू बी अ गुड स्पीकर, तुमको ज़रूरत नहीं है कि अपने आप को मनोरंजनक होने की या लोगों को हंसाने की ज़रूरत नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू सेड यू हैडेंट एनीथिंग टू टॉक अबाउट एंड यू डिड फाइंड समथिंग टू से। इम्पॉर्टेंट थिंग, तुमको ज़रूरत नहीं है कि लोग हंसे तुम्हारे पे या तुम हंसाओ लोगों को, ये बताओ कि तुम एक गुड स्पीकर है। द इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि तुमको कुछ नहीं आता बोलने के लिए और लेकिन तुम कुछ बोल पा रहे थे। बट द बॉय डिड नॉट सिट डाउन, वो लड़का बैठा नहीं। ही सेड इन अ वेरी लाउड वॉइस, उसने बहुत ज़ोर से बोला एंड देन ऑल द चिल्ड्रन लीन्ड फॉरवर्ड, सारे बच्चे जो है सो लीन फॉरवर्ड मीन्स ऐसे बेंट हो गए आगे। द बॉय टुक अ डीप ब्रीथ एंड वेंट ऑन। देन माई मदर शी सेड ब्रश योर टीथ सो आई ब्रश माई टीथ। बॉय ने एक लंबी सांस ली और बोला एंड वेंट ऑन, बोला कि देन मदर शी सेड ब्रश योर टीथ, मेरी माँ ने बोला ब्रश योर टीथ सो आई ब्रश माई टीथ, मैंने ब्रश किया। द हेडमास्टर क्लैप्ड, हेडमास्टर ने क्लैप, एवरी वन एल्स क्लैप टू, सब ने ताली बजाई। वेर अपॉन द बॉय इन एन इवन लाउडर वॉइस देन बिफोर वेंट ऑन अगेन एंड देन और लड़का बहुत तेज़ वॉइस जो बिफोर पहले मतलब पहले तेज़ तो बोला था उससे भी ज़्यादा ज़ोर की वॉइस में बोलने लगा। एंड देन द चिल्ड्रन स्टॉप क्लैपिंग एंड लिसन विथ बेटेड ब्रीथ लीनिंग फॉरवर्ड इवन मोर, बच्चे स्टॉप हो गए क्लैप करने और सुनने लगे और विद बेटेड ब्रीथ वो बहुत एक्साइटेड और वरीड एंड पेइंग मोर अटेंशन कि अब क्या होगा आगे, क्या बोलेगा अब आगे। इवन मोर लीनिंग फॉरवर्ड इवन मोर। फाइनली द बॉय सेड triumphantly and then I came to school. Triumphantly means very proudly, that means it seems कि he has finished his task. And then I came to school, मैं स्कूल आ गया। One of the older boys leaned forward so far he lost his balance and hit his face on his lunchbox, but everyone was terribly pleased that the boy had found something to talk about. एक ओल्डर बॉयज़ वन ऑफ द ओल्डर बॉयज़ उसने क्या किया, थोड़ा आगे झुकने गया
और उसका बैलेंस आउट हो गया और उसका फेस लंच बॉक्स के ऊपर जाकर गिर गया। बट एवरीवन वाज टेरिबली प्लीज, सारे दूसरे जन जो थे वो बहुत खुश थे, बहुत खुश हुए कि एटलीस्ट द बॉय ने कुछ कहा, वो लड़के ने कुछ, ही वॉज हैविंग समथिंग टू टॉक अबाउट, उसने कुछ कहा। द हेडमास्टर क्लैप्ड वाइगोरियसली एंड टोटो चैन एंड द अदर्स डिड टू। हेडमास्टर ने बहुत ज़ोरों के साथ ताली बजाई और टोटो चैन और सबने भी। एंड इवन देन हु वॉज स्टिल स्टैंडिंग इन देयर मिडिल, बीच में कौन खड़ा था, क्लैप्ड। द असेंबली हॉल वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ क्लैपिंग, पूरी असेंबली हॉल में बहुत ज़ोर ज़ोर से सब ताली बजा रहे थे। इवन वेन ही वॉज अ ग्रोन मैन, दैट बॉय प्रॉबेबली नेवर फॉरगॉट द साउंड ऑफ दैट अपलॉस। जब वो लड़का बड़ा हो गया तो उसने भूला नहीं कि सब लोगों ने कैसे मिलकर बहुत ताली बजाए थे। मेक अ नॉइस, अपलॉस मीन्स मेक अ नॉइस, ग्रुप ऑफ पीपल जब ताली बजाते हैं, दैट नॉइस मीन्स अपलॉस. So I hope you all understand the lesson. Thank you so much for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel Learn with Shirin Kazi.